ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن حکیم میں احسن القصص بیان فرماتا ہے۔ ناظرین، اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو کوئی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا گیا وہ کس قسم کا تھا؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر ہر وقت نقاب کیوں لگا کر رکھا کرتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کرنے والی مصر کی شہزادی زلیخا کون تھی؟ اور زلیخا نے ایسا کون سا خواب دیکھا تھا کہ وہ 9 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیکھے ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی؟ اور جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی؟ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی شادی کس طرح ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی امیر عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ ڈالیں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں کی جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 6 بیٹے پہلی بیوی میں سے تھے اور 2 بیٹے باقی 3 شادیوں میں سے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی میں سے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں کی بنسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے آپ کی پیشانی مبارک سے نبوت کے آثار نمایاں نظر آتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے بغض اور حسد رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ زلیخا کون تھی۔ راحیل عورت جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموس بادشاہ کی اولاد میں سے تھی اور یہ انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور وہ اسی وقت آپ کا دیدار کر کے آپ علیہ السلام کے حسن کی دیوانی ہو گئی۔ زلیخا نے کئی بار حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جیسے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی ویسے ویسے ان کا عشق بڑھتا جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ زلیخا نے اپنے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا، اور قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال زلیخا کے لیے عزیز مصر نے رشتہ بھیجا۔ اس طرح زلیخا نے فوراً عزیز مصر کے رشتے کو قبول کر لیا، کیونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا تھا اور پہلے ہی آپ علیہ السلام کے حسن کی دیوانی ہو چکی تھی۔ لیکن وہ رشتہ حقیقت میں اس وقت کے عزیز مصر عطفیر بن رہیب کا تھا۔ چنانچہ اس طرح زلیخا اور عزیز مصر کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات زلیخا کو پتا چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو میرے خواب میں آتا تھا اور جس کی میں دیوانی ہوں، یہ تو کوئی اور ہے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، جنہیں مصر جانے والے ایک قافلے نے نکالا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازار میں پہنچ گئے، اور پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے، اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔ اور ادھر جب زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو اس بات کی خبر ملی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا اور ان کے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑا دے کر خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو بہت عزت و احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ ناظرین، یوں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے اور سکون سے رہنے لگے۔
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि बचपन ही से हुस्न में बाकमाल थे, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आप अलैहिस्सलाम का हुस्न अरूज पर आ गया। और उधर जुलेखा जो पहले ही आप अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देख चुकी थी, वो देखते ही आप अलैहिस्सलाम पर फरिफ्ता हो गई। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, तेरा शोहर तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत दी, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम नजात नहीं पाते। नाजरीन, जुलेखा जो बचपन ही से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखती आ रही थी, जब उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामने पाया और अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही, महल के दरवाजे बंद करके गुनाह की दावत देने लगी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। लेकिन जुलेखा बाज ना आई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे हुक्म रब्बी से खुलते चले गए। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते भागते महल के आखिरी दरवाजे पर पहुंचे तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से कमीज से पकड़ लिया और कमीज पीछे से फट गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी दरवाजा खोला तो अजीज़े मिस्र को अपने सामने पाया। अजीज़े मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं बंद कमरों से निकलते देखा तो जुलेखा ने शोर मचाया कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी करना चाहता है, और अपने शोहर से बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस उसकी यही सजा है कि उसे जिंदान में डालकर दर्दनाक सजा दी जाए। अल्लाह करीम कुरान पाक की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 25 में फरमाता है कि यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। उस वक्त अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि उस वक्त महल में एक ऐसा छोटा बच्चा मौजूद था जो अभी बोल नहीं सकता था। अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही दी और कहा कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई है तो इसका मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार हैं, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो जुलेखा गुनहगार है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 26 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी और कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो औरत झूठी है और वो सच्चा है। इस तरह जब अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखा तो वो पीछे से फटी हुई थी। उस वक्त अजीज़े मिस्र ने कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बहुत बड़े हैं। फिर अजीज़े मिस्र ने कहा कि यूसुफ इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपनी खता की माफी मांग, बेशक खता तेरी है। नाजरीन, जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने का वाकया पूरे मिस्र में मशहूर हो गया और पूरे मिस्र की औरतें जुलेखा को लहन तहन करने लगीं कि अपने गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई है। इस तरह तमाम औरतों ने मिस्र में ये चर्चा करना शुरू कर दिया कि अजीज़े मिस्र की बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई है। हम तो उस औरत को सरी गलती पर देखते हैं। जब जुलेखा ने देखा कि पूरे मिस्र में मुझ पर लहन तहन हो रही है और तमाम औरतें मुझे गलत समझ रही हैं, उस वक्त जुलेखा ने मिस्र की तमाम औरतों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिखाने का इरादा किया ताकि उनको भी पता चल सके कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन हैं और जुलेखा किस वजह से उन पर फरेबता है। एक दिन जुलेखा ने मिस्र की तमाम उम्राह की औरतों को अपने महल में दावत दी और मिस्र की उन तमाम औरतों को फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजरने का कहा। इधर तमाम औरतें फलों को छुरियों से तराश रही हैं और उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने जलवा अफरोज हुए। जब औरतों ने आप अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो देखते ही मदहोश हो गईं और फलों के साथ साथ अपनी उंगलियां काट डाली। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए तो मिस्र की औरतों ने देखा कि उनकी उंगलियां कटी हुई हैं। तो जुलेखा बोली, यही है वो गुलाम जिसके बारे में तुम मुझ पर लहन तहन करती थीं और मुझे बुरा भला कहती थीं। जुलेखा ने कहा कि मैंने हर तरह से अपना मतलब पूरा करने की कोशिश की मगर इसने अपने आप को रोक लिया। जो कुछ मैं चाहती हूँ अगर ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो जरूर इसको कैद कर दिया जाएगा और ये रुस्वा होगा। चुनाचे जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करवाने के लिए ये चाल चली कि वो अपने शोहर के पास गई और कहने लगी, पूरे मिस्र में मुझ पर लहन तहन हो रही है, लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं।
क्यों न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाकर उसको कैद में डाल दिया जाए। इस तरह मिस्र के लोग गुलाम को गुनाहगार समझेंगे और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। लिहाजा जुलेखा ने अपने शोहर की मिन्नत समाजत की तो वो भी राजी हो गया। अजीज़े मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की इज्जत दांव पर लग गई है, अब तुम्हें कैद में डालना मेरी मजबूरी है। चुनाचे अजीज़े मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 7 साल बेगुनाह कैद में गुजार दिए। 7 साल बाद अजीज़े मिस्र ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की और उस ख्वाब की ताबीर बताने पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिल गई। चुनाचे ऐसा हुआ कि कुदरत इलाही से अजीज़े मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और अपनी वफात से पहले ही मिस्र के तमाम तर इख्तियारात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए और आप अलैहिस्सलाम को अजीज़े मिस्र मुकर्रर कर दिया। अजीज़े मिस्र की वफात के बाद वक्त यूं ही गुजरता गया और ज़माने ने कई अरूजो सवाल देखे। अजीज़े मिस्र की वफात के बाद जुलेखा तंगदस्त और मोहताज हो चुकी थी। उस पर बुढ़ापा गालिब आ चुका था, आंखों की बिनाई भी जा चुकी थी। जुलेखा की बेबसी देखकर किसी ने मशवरा दिया कि आप अपनी बेबसी का मामला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें जो इस वक्त के बादशाह हैं। हो सकता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप पर रहम फरमाएं और आपकी मदद करें और आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी उनका ख्याल रखा और उनको इज्जत दी थी। चुनाचे जुलेखा एक ऐसे टीले पर बैठकर इंतजार करने लगी जहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरा करते थे। उधर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़ज़ लोगों, वजीरों और मशीरों के साथ निकले तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू को महसूस कर लिया। आप खड़ी हो गईं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी और कहने लगी कि पाकी है उस जात के लिए जिसने गुनाह के सबब बादशाह को गुलाम और अताहत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। चूंकि जुलेखा उस वक्त बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप कौन हैं? तो जुलेखा ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी, आपके बालों में अपने हाथों से कंघी किया करती थी और आपके रहने की जगह को खुद साफ किया करती थी। अब मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल चुकी है, मेरी कुव्वत खत्म हो गई है, मेरा माल जाया हो गया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ। जुलेखा की बातें सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोए और जुलेखा से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? तो जुलेखा ने अर्ज की, जी हाँ, उस जात की कसम जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ एक नजर देखना जमीन भर सोना चांदी मिलने से महबूब है। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जुलेखा की तरफ निकाह का पैगाम भेजा। जब जुलेखा को पैगाम मिला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम लाने वाले से कहा कि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्न व जमाल के वक्त उन्होंने मेरी तरफ निगाह तक नहीं की, और अब जब मैं बूढ़ी, अंधी और फकीर हो चुकी हूँ तो मुझे कैसे कबूल करेंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और हुक्म के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसमें आज़म का वसीला पेश करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके हजरत जुलेखा का हुस्न जमाल, बसारत और जवानी लौटा दी और हुक्म रब्बी से हजरत यूसुफ और हजरत जुलेखा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह के वक्त आप बाकरा थीं और आपके बतन मुबारक से 2 बच्चे पैदा हुए। नाजरीन, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के गुलाम से मिस्र का बादशाह बना दिया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज पर कादिर है। रब्बे कायनात से दुआ है कि प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें जीना और मरना सिखाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।